Okay, so I hope you all are aware that this is Miss Mohammed Jabir. Uh, I am from BAP department, and I'll be taking introduction to direct tax. This subject is not. This is very familiar subject to you because in your graduation stage, all of you must have done it. Okay, direct tax is already covered in your syllabus, whether it is BAP or BCom or BBI or any other financial course you must have. I just want to know if there is anyone who's new to this subject. कोई है क्या जो दूसरे बैकग्राउंड से है और and doing this subject? Are you listening this subject for the first time? I want the answer. You can use chat box or you can unmute yourself and say. No issues. Is it new? Anyone? Yes or no? Is it audible? Okay. So you are familiar with it, right? Okay. Okay. Very good. I want the answer either in chat box or unmute yourself and say. You're the student of MCOM and you should know now how to speak. Okay. So you must be aware that tax is a contribution levied on person, property or business for the support of government. Okay. To support the government, you have to pay taxes. Obviously, not all, but those in case of actually in case of direct tax, only that person will be paying tax who comes under the ambit or who comes under the bracket, those tax brackets. Okay, but in case of indirect tax, there is nothing like that. Okay, everyone is paying indirect tax. So uh, I just want to know what is the difference between direct and indirect tax. What is the difference between direct and indirect tax? Tell me. Do you know that? What is the difference between direct and indirect tax? देखें तो नो वन, किसी को नहीं पता. दिस इज वेरी सरप्राइजिंग. What is the difference between direct and indirect tax? This semester you will be learning direct tax and next semester it is indirect tax, that is GST, and that is also introduction to GST. At graduation level you have done more, but at MCOM level it is lesser than what you have already learned. So anyone, do you know the difference between direct tax and indirect tax? Are you going to study this way, one-way communication? Okay, indirect tax paid on purchase price. Okay, paid on product purchase price. Anyone else? So what is direct tax? If this subject is not new for you, you must be aware of it, no? जो पता है बोलते जाओ, चलो.
Students, what is the difference between direct tax and indirect tax? I am waiting. And get up. Good morning. Okay, no one. या फिर chat box में. Okay, chat box में सुषमा ने किया आंसर. Direct tax means which is paid directly to the government like GST. बेटा डायरेक्ट टैक्स में जीएसटी नहीं आता है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है. इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो जीएसटी होता है. ओके, लीव इट. आई डोंट थिंक सो यू आर इंटरेस्टेड इन डिस्कशन, so there will be okay, no issues. Tax is a contribution of person by person or it is on property or it is on business to support the government's activity, developmental activity. Okay, this is not something new. You are already aware. The person who pays tax is an assessee. Okay, and it is paid to the government. Okay, so you can see the difference between direct tax and indirect tax. There are two types of taxes: direct tax and indirect tax. Direct tax pays. Direct tax is a tax which is paid by a person from his own pocket. Okay. And when you say direct tax means the person who is paying tax to the government and the person on whom the tax is levied. ठीक है, मतलब जो पर्सन जो गवर्नमेंट को दे रहा है वो पैसे जिससे कलेक्ट हो रहा है वो बंदा, और जो जिस बंदे पे उसकी लाइबिलिटी आई थी, मतलब जिस बंदे पे लेवी हुआ था वो, या तो जिसने एक्चुअली बेयर किया है वो टैक्स को. ठीक है, अगर ये दोनों बंदे सेम है तो आप उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. सो फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स के केस में क्या होता है? असेसी है, उसी का इनकम है, ठीक है, उसी के ऊपर लेवी होगा, अब वही पे करेगा, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स मुझे बताओ कौन टैक्स पे करता है? गवर्नमेंट. इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स कौन बेयर करता है? किसके ऊपर लेवी होता है टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी किसके ऊपर लेवी होता है? कौन उसको बेयर करता है? कंज्यूमर. वेरी गुड, कंज्यूमर. वेरी नाइस, करेक्ट है ना? ओके, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बेयर कौन करता है? कंज्यूमर करता है, नो डाउट. ठीक है, एंड फ्रॉम होम इट इज कलेक्टेड. किससे कलेक्ट करते हो आप? इज इट कंज्यूमर? कंज्यूमर जाके गवर्नमेंट को पे करेगा या कंज्यूमर से कलेक्ट होता है क्या वो? फ्रॉम होम इट इज कलेक्टेड. गवर्नमेंट किससे कलेक्ट करती है जीएसटी? It is paid by consumer. It is borne by consumer. Yes, very good, Sufyan. Seller. So that means there are two person, one on whom the tax is being levied, and the other person from whom the tax is being collected. Correct. One person from whom on whom the tax is being levied. The liability to pay tax is on different person, and the person from whom the tax is being collected is different. ठीक है, तो दो अलग अलग बंदे हो गए. एक ने टैक्स पे किया, डीलर को पे किया. डीलर मतलब सेलर जो है वो, और वो क्या करता है? वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को क्या करता है? पे करता है. ठीक है, दैट इज द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. मतलब देयर आर टू पर्सन. द पर्सन हु इज पेइंग टैक्स इज डिफरेंट and the person from whom the tax is being collected by the government is different. ठीक है, दैट मीन्स इट इज इनडायरेक्ट टैक्स. क्लियर है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस. डायरेक्ट टैक्स में दोनों बंदा सेम होता है, पे करने वाला भी और जिससे टैक्स कलेक्ट हो रहा होता है वो भी बंदा सेम होता है. बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स देयर आर टू, there will be two person, one on whom the tax is being levied or the liability to pay tax is on a different person,
and the tax collection part will be done by different person. Okay, that's why one person is collecting the tax or GST from the consumer and paying it to the government. The person who's paying is not the actual bearer uh, of that tax. That means it is GST. What happens? Obviously, you must have understood the example of direct tax, that is income tax. Obviously, इसके अलावा भी wealth tax भी होता था डायरेक्ट टैक्स के अंदर. ठीक है, अब तो नहीं है वो, बट इन फ्यूचर भी नहीं होगा ऐसा जरूरी तो नहीं. ठीक है, बट करेंटली what is there in your syllabus is income tax. Wealth tax is not there in the syllabus. It was abolished well before. ठीक है, तो वो चला गया है, बट इन फ्यूचर आप देख सकते हैं आपके बजट वगैरह में शायद ये आ सकता है कि अभी सिचुएशन जैसी चल रही है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि मे नॉट बी. ठीक है, वेल्थ टैक्स भी आएगा, बट डायरेक्ट टैक्स इज नॉट ऑलवेज इनकम टैक्स. मतलब इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स सेम नहीं होते. डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में एक इनकम टैक्स आता है. ठीक है, वेल्थ टैक्स भी आता है उसके अंदर, लेकिन वेल्थ टैक्स क्योंकि अभी है नहीं इसलिए सिलेबस में भी नहीं है. ठीक है, एग्जिस्टेंस में भी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर भी नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं. पास्ट में था कभी तो भी. ठीक है, उसके बाद निकाल दिया है. अब सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में आप लोग क्या पढ़ते हैं? इनकम टैक्स पढ़ते हैं. ठीक है, एंड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स यू हैव जीएसटी, कस्टम्स. ठीक है, जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ठीक है, कस्टम इज ऑन इनपुट. ठीक है, सो इन दोनों में क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जीएसटी कलेक्ट किसी से होता है और पे कोई और कर रहा होता है. कस्टम का भी सेम केस है. ठीक है, तो ऑब्वियसली कस्टम का जो बर्डन होगा वो कौन बेयर करेगा? जो फाइनल जो कंज्यूमर होगा वही बेयर करने वाला है. ठीक है, तो इन दिस केस दीज टू कैटेगरी ऑफ टैक्स कम्स अंडर इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, व्हाट हैपेंस इन डायरेक्ट टैक्स? यू कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन. आपका इनकम टैक्स है, आप ही को पे करना है, आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते. ठीक है, और इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आप अपना बर्डन शिफ्ट करते जाते हो. सेलर क्या करता है? अपना बर्डन शिफ्ट कर रहा है किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर. तो अल्टीमेटली टैक्स कौन बेयर कर रहा है? कंज्यूमर बेयर कर रहा है. ठीक है, तो बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो अल्टीमेटली शिफ्ट ही होता है किसी के ऊपर. ठीक है, और आप शिफ्ट कर सकते हो और उससे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर सकते हो. तो यू आर कलेक्टिंग फ्रॉम सम अदर पर्सन एंड यू आर पेइंग इट टू द गवर्नमेंट. तो आपने अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया. तो जीएसटी का केस आपको पता है, कंज्यूमर बेयर करेगा, पे करेगा, और डीलर उसको क्या करेगा? कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देगा, डिपॉजिट कर देगा. ठीक है, सो आई होप देर इज नो डाउट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, अभी भी आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन. ठीक है, व्हाट इज इनकम टैक्स? तो आपको सिंपल यही बताना है, इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम, देयर आर 5 categories or 5 heads of income. You must have already heard about it: income from salary, income from house property, it is capital gain, profits and gains of business or profession, and income from other sources. So this is not something very new, so we won't be discussing on this point now. Okay, now section 1, or actually you should learn this section first. बेसिस ऑफ चार्ज. यही सेक्शन की वजह से आप सारे डेफिनेशंस वगैरह पढ़ते हो. ठीक है, दिस इज द ओनली सेक्शन जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप बाकी के 3 सेक्शन पढ़ते हैं. तो चार्जिंग सेक्शन कभी पूछा जाता है अगर आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये सेक्शन नहीं होता, और ये सेशन बेसिस ऑफ चार्ज या चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? एनीवन? चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है किसी भी एक्ट में? चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है बताओ? दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू. सेक्शन 4 आप लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, लेकिन सेक्शन 4 का मतलब क्या होता है? मतलब सेक्शन 4 का नहीं, लेकिन चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? एनीथिंग, जो भी आपको पता. चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? बोलो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन का मीनिंग क्या होता है? टैक्स शुड बी चार्ज फ्रॉम पर्सन। ओके, ओके। चार्जिंग सेक्शन जो है वो आपको बताता है ऐसा इवेंट, ठीक है, जो होने पे आप टैक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इवेंट है आपका जिसके होने पे ही टैक्स होगा, ठीक है। मतलब अगर ये इवेंट नहीं होगा तो आपका इनकम टैक्स भी नहीं होगा। ओके, मुझे बताओ जीएसटी कलेक्ट करने के लिए क्या इवेंट होना चाहिए? जीएसटी कलेक्ट करने के लिए क्या इवेंट होना चाहिए? कब जीएसटी चार्ज होगा? सिंपल क्वेश्चन है, सेल पे। ओके, वेरी गुड। वैसे सेल इज नॉट द करेक्ट वर्ड, सप्लाई इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ऐसे ही लिखा था ना जीएसटी में तो। खैर, एनीवे सेल भी किसकी कैटेगरी में आता है? सप्लाई की कैटेगरी में आता है। ओके, एंड वो तो करेक्ट आपने बता दिया कि जीएसटी के लिए आपका सेल होना चाहिए या फिर सप्लाई होना चाहिए। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इनकम टैक्स? ठीक है, इनकम टैक्स कब चार्ज होगा? बोलो, इनकम टैक्स कब चार्ज होगा? जीएसटी के लिए इवेंट है सप्लाई, तो वैसे ही आपको चार्जिंग सेक्शन बताता है, आपका सेक्शन 4 बताता है कि कब इनकम टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। देखो पहले लाइन में लिखा है इनकम टैक्स शैल बी चार्ज, कब, किसके ऊपर होगा? ऑफ एवरी पर्सन, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग को पर्सन की डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि किसको बोलते हैं। इनकम टैक्स का तो अभी आएगा, इनकम टैक्स की भी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, इनकम की डेफिनेशन पढ़ेंगे एक्चुअली, ठीक है। देन जो बंदा टैक्स पे करता है, ठीक है, या जिसके ऊपर उसकी लाइबिलिटी है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? असेसी। तो एक्चुअली हम लोग असेसी से क्या करेंगे? टैक्स कलेक्ट करेंगे, टैक्स मतलब उस पर चार्ज होगा टैक्स ऑन टोटल इनकम, ठीक है। मुझे बताओ ये वर्ड का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी में कहीं पे भी नहीं लिखा था टोटल सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर क्यों लिखा हुआ टोटल इनकम? क्यों लिखा है टोटल इनकम? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इनकम? इनकम फ्रॉम ऑल 5 हेड्स, ओके वेरी गुड। इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि आप एक जगह पे टैक्स नहीं कलेक्ट करने वाले, मतलब एक ट्रांजैक्शन के बाद आप टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे, है ना। सप्लाई में क्या होता है, एक बार सप्लाई होता है तो उसके ऊपर आपकी लाइबिलिटी बन जाती है कि आपको टैक्स पे करना है। बट इन केस ऑफ इनकम टैक्स हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग इनकम अर्न करके टैक्स नहीं पे करते। डू वी डू दैट? हम लोग क्या करते हैं इनकम टैक्स में? इनकम अर्न करते हैं और पे कर देते हैं टैक्स, ऐसा करते हैं? नहीं, ठीक है। व्हाट वी डू, वी अर्न इनकम होल ईयर, पूरे ईयर में। उस ईयर को क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर बोलते हैं, ठीक है। उस फाइनेंशियल ईयर में आप क्या करते हैं? पूरा इनकम अर्न करते हैं, ठीक है। उसको टोटल करना है आपको, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट इनकम। अगर आप लिखते हैं ये बेसिस ऑफ चार्ज में अगर आप लिखते हैं इनकम तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इट इज ऑन टोटल इनकम, दिस इज टेक्निकली करेक्ट। टोटल इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना है, और टोटल इनकम ऑब्वियसली आपके 5 हेड्स पूरे टोटल होंगे, और प्लस आपके 5 हेड्स में आप पूरे ईयर में जो इनकम आप अर्न करने वाले हैं, ठीक है। एक ही बार थोड़ी ना सैलरी आएगी, 12 मंथ्स में पूरी सैलरी आएगी, आप टोटल करेंगे उसको, ठीक है। और जब भी आप बात करते हैं टोटल इनकम तो टोटल इनकम कहाँ से कहाँ तक के कैलकुलेट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब टोटल कब से कब तक करना है? आप लाइफ टाइम टोटल थोड़ा ना करते रह सकते हैं, ठीक है। तो टोटल करने के लिए आपको एक पीरियड चाहिए, इसलिए इनकम टैक्स इज पीरियड बेस्ड टैक्स, इसको पीरियड बेस्ड टैक्स बोलते हैं। इट इज नॉट ट्रांजेक्शन बेस्ड टैक्स। ये ट्रांजेक्शन के ऊपर नहीं होता है कि एक बार आपकी सैलरी आ गई टैक्स पे कर दो, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आपकी लाइबिलिटी फाइनल कब डिसाइड होगी? पूरा प्रीवियस ईयर जाने के बाद, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के आपको क्या करना है? सिर्फ इनकम को अर्न करना है, ठीक है। एंड
टैक्स कब पे करते हैं उसके ऊपर? कैलकुलेट कब करते हैं टैक्स? लाइबिलिटी कब कैलकुलेट करते हैं? पे कब करते हैं हम लोग टैक्स? ठीक है, एक ईयर में पूरा इनकम अर्न करना है, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। ठीक है, और जिस ईयर में टैक्स पे करते हैं या कैलकुलेट करते हैं या असेस करते हैं, उस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। वेरी गुड, असेसमेंट ईयर, करेक्ट है ना? तो पहली बार किसी ने अनम्यूट करके भी आंसर दिया है। ओके, सो प्रीवियस ईयर आपको समझ में आ गया, ये चार्जिंग सेक्शन है और ये आपको बताएगा कि ये जो इवेंट है अगर होगा तो ही आप क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, मुझे बताओ, क्या हर पर्सन के ऊपर टैक्स लेवी होता है? क्या आपके ऊपर भी टैक्स लेवी होता है, इनकम टैक्स? नो, नॉट एट ऑल। हाँ, ठीक है, हर किसी के ऊपर टैक्स लेवी नहीं होता। अगर यहीं पे आप खत्म कर देते अपनी डेफिनेशन को तो प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, हर किसी को आप असेसी बनाते और उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर लेते। ठीक है, नाउ आपको क्या फॉलो करना है? एट द रेट एंड रेट्स प्रिस्क्राइब बाय द फाइनेंस एक्ट। ठीक है, ये जो फाइनेंस एक्ट आपको जैसे बताएगा ना, फाइनेंस एक्ट मतलब एवरी ईयर जो बजट आता है, ठीक है, और वो 1 अप्रैल, जो आपका प्रीवियस ईयर खत्म होता है ना, उसके बाद जो 1 अप्रैल आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? इट इज 2021। ठीक है, और आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है? 21-22। करेक्ट है, नो डाउट ना? इसमें 29 आपका जो प्रीवियस ईयर है, जब आपको इनकम अर्न करना था, वो पीरियड आपका कौन सा रहेगा? 2021 रहेगा। और आपको असेसमेंट ईयर कौन सा आएगा? किस ईयर में आपको टैक्स पे करना होता है? तो 21 एंड 22। तो जो 1 अप्रैल 21 मतलब 2021 को जो भी रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, एज पर फाइनेंस एक्ट, जो भी रूल्स अप्लीकेबल होंगे, जो भी अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होंगे आपके ऊपर, वही रूल क्या होंगे? आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, और उस बेसिस पे आप क्या करेंगे? 1 अप्रैल से असेसमेंट ईयर के अपना टैक्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया हर पर्सन पे टैक्स कलेक्ट नहीं होता, सिर्फ किससे होता है? असेसी से होता है। ठीक है, और असेसी कौन होता है? जो ये जो आपके फिनेंस एक्ट के हिसाब से बैठेगा फिट। आप एवरी ईयर आपका जो ब्रैकेट है वो भी चेंज होता है, ठीक है, कंडीशंस चेंज होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो कंडीशन में जो फिट बैठता है, उस हिसाब से क्या होता है, वो एज प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट, वो उसके हिसाब से अगर एलिजिबल होगा, लाइबल होगा, तो वो टैक्स पे करेगा, अदरवाइज नहीं पे करेगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें जो हम लोग को समझ लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इनकम टैक्स? ठीक है, व्हाट हुज पर्सन, ठीक है, हुज असेसी, ठीक है, व्हाट इज टोटल इनकम और व्हाट इज इनकम, ठीक है, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ठीक है, फाइनेंस एक्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, बजट को बोल। ठीक है, ओके, so now we will go one by one to understand these concepts. So section 1 is nothing, मतलब section 1 is nothing but the introduction of this section. ठीक है, whenever you write income tax act 1961, ठीक है, ये जो ए होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये नाउन फॉर्म है एक्ट की। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने उसको वर्ब फॉर्म में लिख दिया स्मॉल में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? सो इनकम टैक्स एक्ट 1961, दैट ए शुड बी कैपिटल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखने के टाइम पे भी ऐसे लिखते हैं, वैसे तो ऑब्जेक्टिव होता है, बट दिस सेमेस्टर कैन बी ऑब्जेक्टिव, मीन्स ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ। ठीक है, तो वी आर नॉट श्योर कि किस टाइप का पैटर्न होगा इस बार। ठीक है, so whenever you write anything as income tax act, so A should be capital, that is very important. ठीक है, this act may be called the income tax act 1961। तो हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, विच एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, जो कि पूरे इंडिया पे इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, save as otherwise provided in this act, it shall come into force from the first day of April 1962। ठीक है, भले एक्ट का नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, बट वो फोर्स में कब आया था? फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। ऑब्वियसली आपके लिए भी जब असेसमेंट स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962 से इनफोर्स हो गया था। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब जो उसका लैंड मास है,
एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है, जो उसका लैंड मास है वो, उसके ऊपर जो वाटर है मतलब रिवर, सी, ठीक है, लेक वगैरह जो है, सी बेड, ठीक है, कुछ एरिया जो आपका आता है, अभी आपको पता चलेगा सी बेड किसको बोलते हैं। सब सॉइल का मतलब तो जो अंडर सॉइल की हम लोग बात कर रहे हैं, सब सॉइल मतलब सॉइल के अंडर, अंडरलाइंग सच वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और एनी अदर मेरीटाइम जोन, मेरीटाइम जोन मतलब जो सी एरिया होता है उस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरीटाइम जोन बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसको बोलते हैं वो आप आगे वाली पिक्चर में देख लेंगे, ठीक है। एयर स्पेस, जितने भी वाटर या लैंड मास है उसके ऊपर के एयर स्पेस है उसको भी आप इंडिया ही बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा सब सॉइल में है या फिर सॉइल के अंडर है या फिर लैंड मास के अंडर है, अगर वहां पे भी कोई इनकम होता है तो उसके ऊपर टैक्स पे करना है, ठीक है। वो रिवर में है, इंडिया में है, इंडिया के रिवर में, इंडिया के वाटर मास में है अगर वो, तो भी उसको टैक्स पे करना है। टेरिटरी में है तो उसको पे करना ही है, मतलब आप लैंड मास में है अगर आप इंडिया के तो उसमें तो आपको पे करना है, बाउंड्री में अगर आप हैं तब तो आपको पे करना ही है। ऊपर आप, नीचे आप वाटर में भी हैं तो भी आपको टैक्स पे करना है। आप एयर में हैं, ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते मैंने तो अर्थ छोड़ दिया है अब मैं एयर में हूँ, मैं ऊपर हूँ, मैंने जमीन को टच नहीं किया है अब मैं टैक्स पे नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर का जो एयर स्पेस है, ठीक है, जितना भी उसके ऊपर भी अगर आप होंगे तो भी आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है अगर आपने इनकम अर्न किया है तो, ठीक है। तो ये पूरे इसके डेफिनेशन में, इंडिया के डेफिनेशन में सब आ जाता है, ठीक है। मैरीटाइम जोन जो सी एरिया को बोलते हैं, ठीक है, सब देख सकते हो इधर पे अलग अलग एरिया है, ठीक है। यहाँ से आपका बेस लाइन शुरू होता है, ठीक है, मतलब सी एरिया आपका शुरू हो जाता है, ये तो इंटरनल वाटर बोलते हैं इसको। फिर एक टाइम आता है जब आपका सी जो है एकदम डीप चला जाता है, ठीक है, पूरा जो एरिया है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है, ठीक है। उसके अंदर 200 नॉटिकल माइल तक के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। और फिर उसके बाद हाई सी एरिया आता है जो कि आपके इसमें नहीं आता, लेकिन अप टू दिस एरिया आप क्या करेंगे, उसको इंडिया के डेफिनेशन में काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग ये मैरीटाइम जोन के जो है वो टेक्निकली यूज होते हैं। जब भी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन भी दो तरह की होती है, सेक्शन 2 में बता दिया है ऑलरेडी, और सेक्शन 2 में काफी सारी डेफिनेशन है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, व्हाट इज इनकम, व्हाट इज एसएससी, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। कुछ डेफिनेशन इंक्लूसिव होती है और कुछ डेफिनेशन एग्जॉस्टिव होती है या एक्सक्लूसिव होती है, ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब ही आपको पता है, जब ऑफर आता है एक्सक्लूसिव तो आपको पता होता है इट इज ओनली फॉर यू, है ना। फिर वो आप उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं होता, उसमें हर कोई उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव जो डेफिनेशंस होती है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव होती है और एग्जॉस्टिव होती है, परफेक्ट होती है, कंप्लीट होती है, उसके अंदर आप कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते, ये डेफिनेशन एकदम परफेक्ट होती है। जबकि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज फिक्स्ड असेट, ठीक है, फिक्स असेट, या तो फिर आप बोल सकते हैं व्हाट इज फिक्स्ड असेट, अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप दो तरह से बोल सकते हैं, या तो उसको डिफाइन कर सकते हैं एग्जॉस्टिव, ठीक है, उसका मीनिंग आप बता सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव, ठीक है। या फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को भी फिक्स्ड असेट बोलते हैं, ठीक है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग को भी फिक्स्ड असेट बोलते हैं, फर्नीचर को भी फिक्स्ड असेट बोलते हैं। लेकिन आप लिस्ट को जो है उसमें आपने एग्जॉस्टिव नहीं किया, आप सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहे हो। तो जब आप सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं या फिर कुछ चीजों को आप इंक्लूड करते हैं सिर्फ डेफिनेशन में, या फिर किसी चीज का मीनिंग बताने के लिए आप कुछ चीजों का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब वो लिमिटेड चीजें ही होती है, ऑब्वियसली उसके आगे भी आप क्या कर सकते हैं, चीजों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है। इंक्लूसिव डेफिनेशन में आप एग्जाम्पल्स देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से TY स्टूडेंट्स इंक्लूड नमीरा, मुस्कान, संदेश, ठीक है। एमकॉम स्टूडेंट्स इंक्लूड सुफियान, ठीक है, ऐश्वर्या, ऐसे करके आप खाली एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसे बोल दिया कि एमकॉम स्टूडेंट्स दोज हु टुक एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर दिस, मतलब 21-22, ठीक है, इन श्री नारायण गुरु कॉलेज, तो आपने क्या किया, उसको एग्जॉस्टिव डिफाइन कर दिया। नाउ यू कैन नॉट मेक चेंजेस इन दिस। तो जो डेफिनेशन आप दे देते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन होती है, तो उसको आप एग्जॉस्टिव बोलते हैं। आप सिर्फ एग्जाम्पल्स देते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव बोलते हैं। तो आई होप आपको ये भी चीज सुनी हुई है कि अभी आने वाली जितनी भी डेफिनेशन होंगी या तो एग्जॉस्टिव होगी या तो फिर इंक्लूसिव होगी, ठीक है। तो मैं पूछूंगा बीच बीच में कौन सी है डेफिनेशन, तो आपको बताना है। और इंक्लूसिव डेफिनेशन जो होती है उसमें वर्ड इंक्लूड यूज होता है, ओके।
आपको क्या लगता है असेसी किसको बोलते हैं? ऑब्वियसली जो पहला टर्म जब असेसी यूज होता है तो असेसी इज अ पर्सन हु पेज टैक्स, ठीक है, बट ओनली पर्सन हु पेज टैक्स, तो आपका आंसर नो होता है, ठीक है। मतलब जो बेयर कर रहा होता है लाइबिलिटी टैक्स की वही हमेशा असेसी होता है क्या? ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो असेसी का मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो पे करता है टैक्स उसको तो आप असेसी बोलते ही हैं, उसके साथ साथ में इसकी जो डेफिनेशन जो है वो बहुत ही वाइड है, ठीक है। तो ये वाइड डेफिनेशन में और क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं? ओके, पहले तो दिया है लाइबल टू पे टैक्स, उसको तो आप बोलेंगे ही एसएससी। द पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, जिसकी लाइबिलिटी है और जो टैक्स पे कर रहा है आप उसको तो बोलेंगे ही, ठीक है। जिसकी लाइबिलिटी है और जो टैक्स पे कर रहा है उसको तो आप एसएससी की डेफिनेशन में लेते ही हैं। बट एसएससी कैन ऑल्सो बी अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू whom एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड, ठीक है, जिसके अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही है, जिसके ऊपर फाइन एंड पेनल्टी लगेगा, ठीक है, उसको भी आप क्या बोलते हैं? एसएससी बोलेंगे। Whose income has been assessed under the Income Tax Act 1961 as assessee in assessee in is any other person who is deemed assessee। ये थोड़ा वर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। Whose income has been assessed under Income Tax Act 1961, assessee is any person who is deemed assessee, ठीक है। डीम्ड assessee का मतलब क्या होता है? अभी आप मुझे बताओ, इन केस ऑफ माइनर, क्या माइनर केपेबल है टैक्स पे करने के लिए? बताओ, एक बच्चा जो कि 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, वो टैक्स पे कर सकता है क्या? नो। है ना? तो उसके लिए कौन टैक्स पे करता है? उसका गार्जियन। गार्जियन, ठीक है। उसका गार्जियन जो भी होगा वो टैक्स पे करेगा, मम्मी पापा या फिर जो भी कोर्ट अपॉइंट करता है उसके हिसाब से, केसेस होते हैं उसके हिसाब से, तो जो गार्जियन होगा उसका वही क्या करेगा, तो दैट पर्सन बिकम डीम्ड एसएससी। सी मुझे एक बात बताओ, जो पेरेंट्स है या जो मम्मी है या पापा जो पे कर रहा है टैक्स, उसकी तो लाइबिलिटी है नहीं, है ना? लाइबिलिटी किसकी है? बच्चे की लाइबिलिटी है, जो कि कौन पे कर रहा है? ठीक है, उनके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, तो उसको डीम्ड एसएससी बोलते हैं। सी अगर आप उसको डीम्ड एसएससी नहीं बनाएंगे तब वो टैक्स कैसे पे करेगा? ठीक है, तो आपको उसको उसको भी एसएससी की डेफिनेशन में ले लिया। भले आपका टैक्स नहीं है, ठीक है, भले आपकी लाइबिलिटी नहीं है, भले यू आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स, बट यू आर पेइंग टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, you will be deemed assessee under any of this provision of this act or an assessee in default, ठीक है। assessee in default मतलब जिसकी लाइबिलिटी नहीं है बट बाय डिफॉल्ट वो क्या बन गया है? लाइबिलिटी उसकी मतलब उसकी हो गई है उसके अंदर, तो assessee in default बन जाता है, ठीक है। assessee in default का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अगेंस्ट, मतलब ऊपर तो आपने दे दिया ना, फाइन एंड पेनल्टी पे करने वाला भी क्या होता है अंडर दिस एक्ट, वो भी क्या होता है? वो भी असेसी होता है। बट असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? ही इज नॉट असेसी बट बाय डिफॉल्ट वो असेसी बन गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड असेसी इन डिफॉल्ट या डीम्ड असेसी जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो असेसी की डेफिनेशन में जो जिसकी लाइबिलिटी है वो तो है असेसी, जिसकी लाइबिलिटी नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल उसकी लाइबिलिटी थी या उसने नहीं पे किया या फिर अंडर दिस एक्ट उसको कुछ उसके अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही है और उसके बाद उसके ऊपर फाइन एंड पेनल्टी लगेगा, ठीक है, तो फाइन एंड पेनल्टी भी पे करेगा अगर वो, सी द पर्सन इज नॉट पेइंग टैक्स, द पर्सन इज पेइंग फाइन एंड पेनल्टी, तो भी आप उसको असेसी बोलेंगे। द पर्सन हु इज पेइंग टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स और असेसी इन डिफॉल्ट और डीम्ड असेसी, उसको भी आप क्या बोल देंगे? असेसी ही बोलते हैं, ठीक है। तो असेसी के डेफिनेशन में ये सब टर्म्स आ जाते हैं। सर इट मींस दैट इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन इसको प्रॉपरली इन्होंने डिफाइन किया है। जब इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है तो उसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है। इसमें तो क्लियर हो गया ना, अब इसके अलावा कोई नहीं आएगा बेटा, आप इसके अंदर और किसी को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ठीक है। ओके ओके। हाँ, अगर इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है तो इंक्लूसिव डेफिनेशन में वो ले लेते हैं उन लोग, आरसीसी में मिस्टर ए आते हैं, बी आते हैं, सी आते हैं, डी आते हैं, तो आप किसी और को ले सकते हैं, तो उसको इंक्लूसिव डेफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया, या तो आरसीसी लाइबल टू पे टैक्स होगा, या तो अंडर दिस एक्ट उसके अगेंस्ट कुछ फाइन एंड पेनल्टी होगी, या तो वो डीम्ड असेसी होगा, तो उसको असेसी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बंदा असेसी के डेफिनेशन में नहीं आ सकता। ओके, नाउ व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट। अब बताओ ये कौन सी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव। ठीक है, और इंक्लूसिव डेफिनेशन कभी भी परफेक्ट नहीं होती, आपको भी समझ गया होगा कि Okay. अगर ये डेफिनेशन आप देखेंगे तो असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट, इसमें सिर्फ बता कि रीअसेसमेंट भी असेसमेंट में इंक्लूड होता है, इतना ही अच्छा। बता, ठीक है। बट असेसमेंट क्या होता है ये डिफाइन नहीं किया है कहीं पे भी, है ना?
तो असेसमेंट को डिफाइन किया है यहाँ पर, मतलब एक जनरल मीनिंग लेकर डिफाइन किया है असेसमेंट को, क्योंकि जब भी आप इंक्लूसिव डेफिनेशन देते हैं तो इंक्लूसिव डेफिनेशन के सपोर्ट में आपको क्या करना पड़ता है, कई सारे डेफिनेशन मतलब कई सारे मीनिंग उसके ले सकते हैं हम। तो असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द करेक्टनेस ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड बाय द असेसी एंड कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स payable by him and further procedure of imposing tax liability on that person। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस, व्हाट इज माय इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स पता करते हैं, अपना इनकम पता करते हैं, आप अपना टैक्स पता करते हैं, आप आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करता है, कंफर्म करता है, पेमेंट करते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये जो पूरा होल प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असेसमेंट। ठीक है, तो असेसमेंट इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस of calculating your income, calculating your tax liability, filing ITR, that verification by the IT department, this whole process is called assessment। ठीक है, असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट। अगर आपका रीअसेसमेंट होता है किसी रीजन से, पहला वाला आपका असेसमेंट प्रॉपर नहीं हुआ था, ठीक है, तो भी असेसमेंट की डेफिनेशन में वो आ जाएगा। तो असेसमेंट की डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव है। अगेन पर्सन इंक्लूड्स, दैट मीन्स ये भी डेफिनेशन क्या है आपकी, इंक्लूसिव है ना। तो पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, an HUF, that is Hindu Undivided Family, a company, a firm, an association of person or body of individual, a local authority, every artificial and juridical person who is not included in the above definition or above category। ठीक है, अब ये है आपका पर्सन, इनमें से ही कोई असेसी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि हर पर्सन टैक्स पे करता है। तो जो पर्सन टैक्स पे करेगा या फिर डिफॉल्ट मतलब उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग होगी अंडर दिस एक्ट, या फिर ये असेसी इन डिफॉल्ट होगा या डीम्ड असेसी होगा, तभी जाके तो वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। बट हर पर्सन टैक्स नहीं पे करता है, लेकिन टैक्स असेसी होने के लिए तो पहले आपको पर्सन तो होना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन बी एन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी हो सकते हो आप, या एवरी आर्टिफिशियल एंड ज्यूरिडिकल पर्सन। ये सबके लिए कैटेगरी जो होती है वो अलग होती है, टैक्स रेट अलग होता है, इनकम टैक्स ब्रैकेट अलग होता है। ठीक है, सब चीजों के सबके लिए अलग होता है। इंडिविजुअल जो टैक्स पे कर रहा होता है, कंपनी वो टैक्स पे नहीं कर रही होती, इसलिए एक पर्सन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना जरूरी है। ठीक है, जो भी टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, उसको इस कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। इन सब के टैक्स रेट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओके, इंडिविजुअल किसको बोलते हैं, proprietary basis। हाँ, एक्चुअली अगर आप आगे देखेंगे तो ये जो पैन नंबर है आपका, ठीक है, इसका 4th डिजिट जो होता है वो बताता है पी मतलब आप इंडिविजुअल। आपका भी पैन में आप देख सकते हैं, आपका 4th डिजिट जो होगा वो पी होगा। ठीक है, Okay। दैट इज एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो पर्सन के लिए जो आपका नेचुरल पर्सन होते हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सारे। ठीक है, कि मिस्टर ए है, माइनर है, तो वो भी इंडिविजुअल होगा। ठीक है, एक नेचुरल पर्सन कभी भी क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। ठीक है, ये एक है इसलिए इसको इंडिविजुअल बोला जाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप नहीं हो सकता कभी भी, बाकी के सारे जो हो सकते हैं वो ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, या फिर वो नेचुरल पर्सन की कंडीशन में नहीं आएंगे, नेचुरली जो बर्थ लेते हैं वैसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में भी कुछ ऐसे आते हैं, जैसे कि गॉड एंड गॉडेस जो अपने आप को इंडिविजुअल नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो वो किस में आते हैं, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में आते हैं, गॉड एंड गॉडेस भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोग नेचुरल पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मिस्टर ए प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बी ल्यूनाटिक, मिस्टर सी माइनर, मिस्टर डी, ठीक है, प्रोफेसर। ठीक है, जो भी है ये एक इंडिविजुअल हो जाएगा। HUF का मतलब भी तुम लोग को मालूम होगा, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा। इट्स अ बिजनेस ऑफ हिंदू। ठीक है, जो कि एक ट्रेडिशन में फैमिली बिजनेस में है। ठीक है, अब तक के डिवाइड नहीं हुए हैं। ठीक है, उसमें एक करता होगा। ठीक है, पूरा वही सिचुएशन है। ठीक है, जो आप लोगों ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पढ़ा है। तो जब क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा तो वहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम, मिस सीता, जो सन लव एंड कुश इन अ बिजनेस। ठीक है, एक कॉमन सोर्स ऑफ इनकम होगा उनका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक जो पूरी फैमिली है वो इसमें टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक एडवांटेज होता है कि हर इंडिविजुअल को टैक्स पे नहीं करना होता। इंडिविजुअल तो है ही नहीं ये लोग, ये तो एक ग्रुप है। ठीक है, हर किसी को टैक्स नहीं पे करना होता है। मुझे बताओ कौन टैक्स पे करता है HUF में,
कर्ता द हेड ऑफ द फैमिली। हाँ, कि कर्ता द हेड ऑफ द फैमिली, तो कर्ता ही टैक्स पे करता है, को पार्टनर्स जो है वो टैक्स पे नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आप अगर सर्च करेंगे तो काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं। कई सारे बिजनेस को एचयूएफ में आना होता है, लेकिन हर कोई एचयूएफ में फॉल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि वो हिंदू ऑपरेशन से आना चाहिए। एचयूएफ जो होता है वो हिंदू ऑपरेशन से आता है। ठीक है, तो उसके लिए सेपरेट एक्ट लगता है। तो पर्सन फर्स्ट शुड बी हिंदू, उसके बाद वो बिजनेस इसमें काउंट होता है। ठीक है, फिर उसके अंदर भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है, उसके अंदर तो हम लोग को जाना ही नहीं है और हमारे कोई काम का है भी नहीं उसके अंदर। ठीक है, एन एचयूएफ इट्स अ फैमिली ऑफ हिंदू, दे आर इन अ बिजनेस। ठीक है, और वो बाय सक्सेशन बनते जाते हैं, वो सारे फीचर्स आप लोग ने पहले पढ़ा है, सेम है, तो इसमें डिफरेंस नहीं है। कंपनी को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है? कंपनी कितने तरीके की होती है बताओ? कंपनी, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड हाँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, कंपनी में तुम लोगों ने दो टाइप की कंपनी पढ़ा है। ठीक है, कंपनी या तो पब्लिक होती है या तो प्राइवेट होती है, बराबर है, दो तुम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ओके। जिसमें से एक डेफिनेशन तो बहुत सिंपल थी, कंपनी विच इज नॉट पब्लिक कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, करेक्ट है ना? यही डेफिनेशन थी, बहुत सिंपल सी थी। लाइफ बिकम्स वेरी इजी जब इस तरह की डेफिनेशन आती है। समथिंग विच इज नॉट पब्लिक इज प्राइवेट, है ना? तो दो अभी पब्लिक को ना गवर्नमेंट के साथ में जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पब्लिक कंपनीज कैन बी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और जॉइंटली और बाय एनी अदर पर्सन। तो इसमें पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि वो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट की कंपनी होना चाहिए, तो वो अलग बात है। लेकिन पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है। अच्छा, पब्लिक कंपनी के आगे एक्सटेंड जो आपका लास्ट जो होता है, ठीक है, सफिक्स जो होता है आपकी पब्लिक कंपनी के आगे क्या यूज होता है पता है आपको? किसी भी कंपनी का लास्ट, जो पब्लिक कंपनी का लास्ट वर्ड क्या होता है? आप कोई भी कंपनी का नाम लिखेंगे तो पब्लिक कंपनी, तो लास्ट उसके वर्ड क्या होते हैं पब्लिक कंपनी के? बोलो। लिमिटेड, वेरी गुड, लिमिटेड। हाँ देखो, यहाँ पे भी आंसर्स कई सारे हैं। ठीक है, लिमिटेड होता है। ठीक है, पब्लिक कंपनी के आगे वर्ड लिमिटेड होता है, और प्राइवेट कंपनी के आगे वर्ड प्राइवेट लिमिटेड होता है ना? तो कंपनी तो आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, जब भी आपके क्वेश्चन में आएगा तो वर्ड या तो लिमिटेड होगा या तो प्राइवेट लिमिटेड होगा। प्राइवेट लिमिटेड मतलब प्राइवेट कंपनी है, और अगर लिमिटेड है तो पब्लिक कंपनी। अब हम लोग को प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में तो जाना नहीं, कंपनी कंपनी होती है। ठीक है, कंपनी की डेफिनेशन में फॉरेन कंपनी भी आती है, इंडियन कंपनी भी आती है। कंपनी की डेफिनेशन में ऐसा भी एक पर्सन आता है जो कि प्रीवियसली एज अ कंपनी पे करते आया हो टैक्स, वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आ जाता है। मतलब इससे पहले आपको पता नहीं था आप किस में आते हैं, तो आपने एज अ कंपनी टैक्स पे किया है तो आप कंपनी ही हो। ठीक है, तो ऐसा भी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जो इससे पहले वाले प्रीवियस एक्ट में, कंपनीज एक्ट में आपने एज अ कंपनी ही पे किया है टैक्स, तो आप कंपनीज में आ जाएंगी, कैटेगरी में आ जाएंगी। बट हम लोग को क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए दी वर्ड लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड दिया होता है। ओके, मुझे बताओ, बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स जो होते हैं वो कंपनी होते हैं या नहीं होते हैं? बैंक्स, यस और नो? बैंक्स जो होते हैं वो कंपनी होते हैं या नहीं होते? या नो। कौन से बैंक कंपनी होते हैं? हाँ बोलो। नो बोला किसी ने? प्राइवेट लिमिटेड बैंक में भी कंपनी। हाँ, ओके, नहीं ऐसा पब्लिक कंपनी, पब्लिक बैंक्स भी कंपनी में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों की कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। हाँ, बैंक्स कैन बी कंपनी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बताओ, श्री नारायण गुरु कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कंपनी है क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हाँ, इट इज रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज सोसाइटी एक्ट। एक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो कोऑपरेटिव जो है वो किस में आते हैं फिर? ये पूरे कंपनी तो नहीं है कोऑपरेटिव्स। ठीक है, किस में आते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वेरी गुड। जब आप लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था 12th में भी, तो पहला वर्ड लिखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी
ठीक है, उसके लिए पहला वर्ड था इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, पहला ही आपका फीचर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अभी लेटर ऑन हम लोग जब आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि वो, हाँ, तो मेरे बोलने का मतलब है बैंक्स जो है वो कंपनी की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन फॉर दैट दे शुड बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, कंपनी होगा। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं कर लेना, बैंक को देख के कहीं और नहीं डाल देना, और कहीं कहीं डालोगे कहाँ पे आप उसको, बैंक जो होते हैं वो कंपनीज में आते हैं। ठीक है, दे आर रेगुलेटेड बाय जो आरबीआई रेगुलेशन जो है, बट दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। जो बैंक जो होते हैं दे आर ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, इसलिए उनका भी डिविडेंड जो होता है वो इंडियन कंपनी की तरह उनका भी डिविडेंड क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन बैंक, इंडियन कंपनीज जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, जबकि कोऑपरेटिव का एग्जाम नहीं है। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि वो कंपनी ही नहीं है। ओके, अ फर्म, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। अब जब ये भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे पार्टनरशिप की डिटेल दी होगी, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये फर्म है। तो आई थिंक इसमें भी कोई आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ठीक है, उसमें रजिस्टर्ड होते हैं फर्म सारे। जब डिटेलिंग आएगा तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ गया, पार्टनर समझ में आ जाता है वर्ड, तो उसके लिए फर्म लिखना है। ठीक है, पार्टनरशिप होते हैं ये। अब यहाँ पे ऑब्वियसली पार्टनर्स का जो ये होता है रिलेशनशिप होता है वो क्लियर होता है थ्रू पार्टनरशिप डीड, तो इसलिए उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। इसके अलावा जब ग्रुप्स बनते हैं तो वो या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं या तो फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रस्ट जो होते हैं, ट्रस्ट मतलब मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, बॉडी चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पोर्ट ट्रस्ट जो होता है लोकल अथॉरिटी होता है। ठीक है, ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। कोऑपरेटिव्स जो होते हैं वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? क्या डिफरेंस हो सकता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में? बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, बट इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस आपको लगता है कि हो सकता है? Association of persons may be working for a service motive, and body of individuals may be working for profit motive. ओके, Is it like this? नो, ऐसा एकदम नहीं है, क्योंकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल हो सकते हैं, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल ही बॉडी बना सकते हैं, तो उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं। जबकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन कोई भी बना सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कोई भी बना सकता है एसोसिएशन। ठीक है, एक कंपनी, एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ, एक कंपनी, ठीक है, मिलकर एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है, जब बॉडी बनाने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल चाहिए। ठीक है, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडिविजुअल्स, whereas an association of person consists of individual as well as other person also। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में दूसरे भी बंदे आ जाएंगे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, कोई भी मिलकर जब बिजनेस करेंगे, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आते हैं, कुछ इनकम अर्न करते हैं, एसोसिएट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, या फिर एसोसिएशन बनाते हैं, दे आर नॉट कंपनी, दे आर नॉट फर्म। ठीक है, एचयूएफ में नहीं आते हैं, एसोसिएशन है अगर, ग्रुप है अगर वो, तो किस में आ जाता है आपका, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आता है। ठीक है, ट्रस्ट भी इसके अंदर आते हैं, कोऑपरेटिव्स भी इसके अंदर आते हैं, क्योंकि ये लोग जरूरी नहीं कि यहाँ पे इंडिविजुअल ही हो। ठीक है, कोई भी मिलकर एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना सकते हैं। ठीक है, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए जरूरी है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए। मतलब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ठीक है, अग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, तो ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आ जाएगा। मिस्टर ए लिमिटेड, ठीक है, और कोई एचयूएफ आप ले लो, मिलकर अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो अन एसोसिएशन ऑफ पर्सन में चला जाएगा। तो ये थिन डिफरेंस होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। लोकल अथॉरिटी का मीनिंग सेम है, मतलब इससे पहले जैसा आपने पढ़ा है सेम है, बीएमसी वगैरह जो है, पंचायत है, पोर्ट ट्रस्ट है, बार काउंसिल्स है, जिसको लोकल डिसीजन लेने का राइट होगा उस जगह पे, वो क्या बन जाएगा, लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में आ जाता है। ठीक है, तो आपका म्यूनिसिपैलिटी वगैरह जो है वो इस डेफिनेशन में, पंचायत है, बार काउंसिल्स है, पोर्ट ट्रस्ट है, ठीक है, ये सब क्या है आपके लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में आ जाते हैं। जो ऊपर नहीं आते वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यूनिवर्सिटी
कई बार पूछता है आपको यूनिवर्सिटी जो है वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, कोई टेम्पल आपको दे सकता है वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, ठीक है। फिर आपका क्या था वो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो भी इधर ही पे आएगा, क्योंकि उसका भी सेपरेट एक्ट के थ्रू बना है, ठीक है। तो अपना सेपरेट एक्ट के थ्रू बनते हैं, ठीक है। जो कंपनीज वगैरह नहीं होते, ये सब कंपनीज नहीं है, ठीक है, तो वो इसमें आ जाते हैं। फिर अपना ये ना इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो भी कंपनी नहीं है, वो क्या है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आता है, ठीक है, वो भी याद रखना है आपको। तो जिनका खुद का एक्ट है, ठीक है, जो अपने एक्ट के थ्रू बने हुए, ठीक है, वो उसको किस में लेते हैं आप, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में देते हैं। या फिर जो अबव कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, बोलता है नहीं मैं गॉड हूँ, अगर ऐसा बोलता है तो ऑब्वियसली आप उसको इंडिविजुअल की कैटेगरी में नहीं ले सकते, आप उसको एवरी आर्टिफिशियल एंड जुरिडिकल की कैटेगरी में लेना पड़ेगा। टेम्पल वगैरह जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसी चीज जो कहीं नहीं आई वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, एनी डाउट इन पर्सन, यहाँ पे कुछ पर्सन में आपको डाउट है, कुछ चीज वापस से समझना है, एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? No. ओके, देन वी विल गो फर्दर। पेन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये 4th डिजिट जो होता है वो आपका कौन सा टाइप का इंडिविजुअल है वो बताता है। पी मीन्स पर्सनल या प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। एफ मीन्स फर्म, सी मीन्स कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वैसी एसोसिएशन का है, ट्रस्ट का अलग है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का अलग है, लोकल अथॉरिटी का अलग है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का अलग है, गवर्नमेंट का अलग होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। नाउ इनकम की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इनकम की डेफिनेशन में सारे इनकम आ जाते हैं, ठीक है। इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड इट इंक्लूड्स बहुत सारी चीजें, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, सारे हेड्स के जो है सैलरी इसके अंदर आ जाते हैं, रेंट इसके अंदर आ जाता है, कैपिटल गेन उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन जब हेड्स पढ़ेंगे तब तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। तो देर इज नो डाउट कि हम लोग ये पर्टिकुलर इनकम वाला पार्ट जो है वो हेड्स ऑफ इनकम में हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसकी अभी फिलहाल कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, अगर डिस्कशन आएगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा इसके ऊपर डिस्कशन, ठीक है। बहुत ही लेंदी टॉपिक है ये हेड्स ऑफ इनकम जो है, ठीक है। और उसको सेपरेटली एक एक करके ब्रेकअप करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनकम को फॉर दिस टाइम आप इतना ही याद रखो कि प्रॉफिट भी इनकम होता है, गेन भी इनकम होता है, डिविडेंड भी इनकम होता है, सैलरी भी इनकम है, वेजेस भी इनकम है, परक्विजिट भी इनकम है, इलीगल भी इनकम है, लीगल भी इनकम है, ठीक है। रेगुलर भी इनकम है, इरेगुलर भी इनकम है, ठीक है। रिसीव्ड इन इंडिया इनकम है, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इनकम है, सब्सिडी, रिलीफ, ठीक है। गिफ्ट, लेकिन गिफ्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50,000 के ऊपर, ठीक है, तब जाके वो क्या होगा, इनकम की कैटेगरी में आ जाएगा। कोई भी प्राइजेस, कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी वगैरह जो है, ये सारी इनकम की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है तो पूछ लो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। परक्विजिट हम लोग सैलरी में पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो वी विल गो फर्दर इफ देर इज नो एनी डाउट। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका मुझे आंसर बताना, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है जो आपके सिलेबस के ऊपर अप्लाई होता है? 2021 and 22. वेरी गुड। तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये प्रीवियस टाइम का स्लाइड है, तो इसमें डेट चेंज नहीं हुई है, तो मुझे लगा आप ये वाला ईयर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। 2021 जो है वो प्रीवियस ईयर है, और 21-22 जो है वो आपका असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। इट इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, हमेशा ये 12 मंथ्स का ही पीरियड होगा। ऑब्वियसली आप जैसे इनकम अर्न कर लेते हैं, 31 मार्च हो गया, 1 अप्रैल से आपका असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है, और वो 1 अप्रैल से ही होता है स्टार्ट, और अगेन 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये हमेशा 12 मंथ्स का होता है, असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स का होता है, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। असेसमेंट ईयर इज अ ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ऑलवेज, ठीक है। और आपके लिए असेसमेंट ईयर 21-22 है। नाउ प्रीवियस ईयर के लिए ऐसा डेफिनेशन नहीं दिया है, प्रीवियस ईयर के लिए बोला है प्रीवियस ईयर इज द ईयर, ठीक है, प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, ठीक है। असेसमेंट ईयर से पहले जो आता है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर बिकम्स 20 एंड 21, मतलब 2020 एंड 21 बिकम्स आवर प्रीवियस ईयर। ओके, तो इस केस में यहाँ पे देखो एग्जांपल दिए, ये प्रीवियस ईयर है तो ये असेसमेंट ईयर। कई बार क्वेश्चन में भी पूछ लेता है
ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, ये असेसमेंट ईयर है तो असेसमेंट ईयर से पहले जो है वो प्रीवियस ईयर आता है और प्रीवियस ईयर के बाद जो है वो असेसमेंट ईयर आता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं दिया है कि इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं लिखा है? इसको भी तो लिख सकते थे कि ये 12 मंथ्स का है, ऐसा लिख लेना चाहिए था ना, लेकिन कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि 12 मंथ का है, क्योंकि प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ, प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ। ठीक है, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा? अच्छा, प्रीवियस ईयर के लिए ये क्या है, मतलब एसेंस क्या है प्रीवियस ईयर का? व्हाट इज टू बी क्वालिफाइड एज फॉर बीइंग द प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर में होता क्या है? प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न होता है। ठीक है, Yes. तो Yes. प्रीवियस ईयर के लिए इनकम अर्न करना जरूरी है, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर में इनकम लेस देन 12 मंथ के लिए अर्न करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस एग्जिस्टेंस में ही नहीं होता। ठीक है, Yes. जैसे Yes. अगस्त में रजिस्टर हुआ तो अगस्त से इनकम अर्न करना स्टार्ट करेगा, और जब से वो एग्जिस्टेंस में आएगा, अभी एक मुझे बात बताओ, न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, मतलब एक नवंबर में दिसंबर में जिसका बर्थ हुआ है, ठीक है, 1 अप्रैल को तो हर कोई बर्थ नहीं लेता। ठीक है, Yes. Okay. इट इज नॉट मैंडेटरी कि एक कंपनी जो है वो 1 अप्रैल को ही आएगी। ठीक है, वो कभी भी आ सकती है एग्जिस्टेंस में, और वो जब से एग्जिस्टेंस में आएगी तब से वो इनकम अर्न करना स्टार्ट करेगी। अभी कोई पेरेंट्स है, उन्होंने अपने बच्चे के नाम पे एक प्रॉपर्टी कर दी है, ठीक है, और उससे रेंट आता है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी उस बच्चे की है, तो ऑब्वियसली वो न्यू बॉर्न बेबी है, वही उसका मतलब जो क्या बोलते हैं उसका जो ओनर है वही है। ठीक है, उसके नाम पे है वो प्रॉपर्टी। या फिर ऐसे हो सकता है कि ये मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई और वो बच्चा जब जिसका बर्थ हुआ उसके बाद उसके मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई, ऐसे भी केसेस होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर, बिकम्स द पर्सन, दैट चाइल्ड बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब उससे रेंट आना शुरू करेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ठीक है, क्या ये बच्चा जो है वो बर्थ लेने से पहले इनकम अर्न कर सकता है क्या? No, not at all. है ना, वो तब तो नहीं Yes. कर सकता, तब तो वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। वैसे ही एक लेकिन हाँ, बर्थ लेने के तुरंत बाद वो अर्न कर सकता है अगर उसके नाम पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी हो। ठीक है, उसके नाम पे ऑलरेडी शेयर्स हो, तो ऑलरेडी जो ओनर होता है वही बच्चा होगा, वही उसके लिए ऑब्वियसली उसके बिहाफ पे कोई और टैक्स पे करेगा, हमने ऑलरेडी ऊपर देखा है डीम्ड एसएससी में। ठीक है, लेकिन वो बंदा टैक्स पे करने की पोजीशन में आएगा ही कब, जब वो बर्थ लेगा। ठीक है, अब जब उसने बर्थ लिया नहीं है तो वो इन एनी केस वो कभी भी उसका ओनर नहीं बनेगा, और जो एग्जिस्टेंस में नहीं है वो उसका ओनर नहीं है। वैसे एक न्यू कंपनी के भी केस में ऐसा होता है कि अगर एक कंपनी अगस्त में फॉर्म हो रही है तो अगस्त से ही उसका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा, लेकिन 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका असेसमेंट ईयर कब स्टार्ट होगा? 31 मार्च के बाद। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर कभी भी 12 मंथ का हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ इन केस ऑफ न्यू बिजनेस। इन केस ऑफ न्यू बिजनेस प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, और बेसिस ऑफ चार्ज तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इनकम टैक्स शैल बी चार्ज। ठीक है, मींस दिस टैक्स इज ऑन इनकम ऑफ एवरी पर्सन, जिसमें से किस पर्सन को आप बोलेंगे कौन टैक्स पे करेगा? असेसी पे करेगा टैक्स। ठीक है, उसके टोटल इनकम पे। टोटल इनकम का मैंने मतलब बता दिया, इनकम नहीं है यहाँ पे, वर्ड टोटल इनकम। तो टोटल इनकम मतलब ऑब्वियसली आपको टोटल करना पड़ेगा, और टोटल करना किस ईयर में है? अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पूरे प्रीवियस ईयर में आपको क्या करना है? अपने इनकम को, मतलब पूरे प्रीवियस ईयर के इनकम को आपको टोटल करना है। ठीक है, रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर एट एनी, मतलब जो उसका पे करने का जो या कैलकुलेट करने का जो स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा? उसका असेसमेंट ईयर होगा, मतलब 1 अप्रैल आपके लिए 1 अप्रैल 21। ठीक है, जो है आपका असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उस डेट पे जो भी इसके रेलेवेंट प्रोविजन होंगे वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे एट द रेट एंड रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट। जो भी आपके फाइनेंस एक्ट में जो रेट्स या जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब होंगे उसके हिसाब से आप क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो ये चार्जिंग सेक्शन है। अगर ये सेक्शन नहीं होता, और चार्जिंग सेक्शन आपको क्या बताता है? इवेंट बताता है टैक्स में। ठीक है, कि कौन से इवेंट पे आप क्या करेंगे? टैक्स को पे करेंगे। ठीक है, नाउ टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट और एनी कंसर्न, एनी क्वेश्चन आपको इसके ऊपर है। नहीं है तो मेरे लिए आपके पास सरप्राइज है। ठीक है, मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है। मेरे पास टेस्ट लिंक है जो कि 2 मिनट में आपको मिलेगा। यू विल ट्राई, एंड आप ट्राई करके देखो आपको कितना समझा है, मुझे भी समझेगा। ठीक है, आपको क्या क्या समझा है करके। ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में आपको टेस्ट लिंक भेज दूंगा। टिल देन आपको अगर कोई डिस्कशन करना है, कुछ क्वेश्चन है
कोई कंसर्न है तो वो आप पूछ सकते हैं। नेट बहुत स्लो है। Attendance. Any doubt, any question, any concern? Sir, previous year, क्या बोले, मुझे नहीं सुनाई दिया बेटा। You can put it in a chat box और मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले। Screenshot. Okay, I think my network is unstable. Is it audible? yes. हाँ, so network थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया इसीलिए वो ओपन भी नहीं हो रहा था शायद। इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट टैक्स मिल गया। कुछ लो यार। ओके, ओके, आई वाज सेइंग दैट प्रीवियस ईयर इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर। हाँ हाँ, करेक्ट है, आप फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर को। योर टेस्ट लिंक कम, attendance link is there in the chat box. You can give the test as in your free time. ठीक है, अभी ये लिंक को आप कॉपी करके अपने पास रख लो। ठीक है, आई विल पुट इट इन अ ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, आप वो टेस्ट दे दो ताकि जो नहीं आए हैं वो भी एटलीस्ट लेक्चर देने के बाद अगर उनको चाहिए तो वो टेस्ट के लिए दे सकते हैं। सो आई विल पुट इट इन अ ग्रुप ऑल्सो। आप अपने टाइम के हिसाब से टेस्ट दे सकते हैं और यू कैन चेक योर नॉलेज। ठीक है, so shall we leave now?